Hi everyone. Today we have Amay on the podcast, and Amay has been with us since 2023, and he has been an active client of PFC since so long. Welcome to the show, Amay. Hi, Niket. Thank you so much. So, starting off, I'll start by asking you how has your relationship been with health since the beginning? Since I was into fitness profession, what used to happen was कि सिखाओ 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 इसको ये सिखाओ उसको ये सिखाओ and in the process I used to ignore my personal health and own health. Also it is कि सुबह से लेकर शाम तक we teach same things to different people. तो saturation point आ जाता है कहीं पे and it is very difficult कि उसमें से 2 घंटे निकाल के खुद के लिए फिटनेस पे फोकस करो या फिर खुद के न्यूट्रिशन पे फोकस करो, ये करो वो करो. सो इट वाज अ टफ थिंग लाइक दैट. तो वो कैसे ओवरकम किया आपने? Yeah, so it has been a story behind this. And what happened was कि जब से कोविड था तब से like a lot of things got shut down and I had to focus on a lot of clients. In the process personal health बहुत hamper हुआ and to recover it like 2020 में कोविड था, 2021 में कोविड था, so to recover from it took a time and my health suffered. एंड इट इज़ लाइक यू डू नॉट नोटिस योर सेल्फ. सो जब भी आप फैट गेन करते हो तभी भी आप नोटिस नहीं करते हो एंड इट इज़ अ वेरी कंफर्टिंग सिनेरियो. क्लाइंट्स ने बोलना शुरू कर दिया था कि सर आपका बेली फैट दिख रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है. बट देन द थिंग वॉज कि इन अप्रैल मी एंड माई किक बॉक्सिंग कोच वेंट टू गोवा फॉर अ वर्कशॉप and then there were these Brazilian coaches and a lot of celebrities also came in that workshop and the Brazilian coaches were like they took a very hectic session and I realized that I was not able to do certain movements in certain way. I was getting tired very easily. I was not performing up to the mark. And then one of the coaches asked me that you do have your own facility, right? And what kind of your personal health is currently? And that kind of hit hard on the heart. और फिर सोच लिया कि कुछ तो करना है इसके बारे में. कभी ना कभी कोई ना कोई हमको रियलिटी चेक जरूर देता है. दिस इज वेयर यू आर, दिस इज वेयर यू कैन बी, एंड वहीं से वी गेट द मोटिवेशन टू वर्क फॉरवर्ड. आपके साथ भी ऐसे होता है? यस. तो ऐसा कह सकते हैं कि वो एक ट्रिगर था, दैट ट्रिगर सॉर्ट ऑफ डायरेक्टेड यू इन द करेक्ट पाथ. एंड फ्रॉम देयर यू स्टार्टेड योर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. What was your relationship with food like? मतलब before meeting Kamal, before meeting PFC, मतलब वो खाने के साथ relationship कैसा था? मतलब you used to measure everything और कैसा था? No, I see. Frankly, I had tried personally everything. So I was tired of trying. I tried keto. I tried multiple diets, Instagram hacks, यूट्यूब पे बताए हुए सब नुस्खे. फिर कोई बोलता है कि पानी में शहद डाल के पी जाओ, ये वो क्या बोलते हैं, फैट विल मेल्ट काइंड ऑफ सिनेरियो. So I tried every single thing. The sad part of it is कि I am a certified fitness coach, not a nutritionist. So I did not know कि how to go about it. Also, previously, this is very personal. मेरा ट्रांसफॉर्मेशन एक बार पहले भी हो चुका था जो मेरे फिटनेस कोच ने किया था in 2019. But I have also shared this on my Instagram. The picture at that time, I was looking skinny. So and I had lost all the muscle. सो इन फैट लॉस जर्नी भी लोगों का माइंडसेट ऐसा रहता है कि सिर्फ पतला होना है पतला होना है पतला होना है, बट दे डू नॉट नो कि हाउ टू रिटेन गुड मसल मास, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूट्रिशन, क्या करना चाहिए. तो सबसे पहले तो एज अ क्लाइंट आई फील पर्सनली यू शुड इन्वेस्ट इन अ गुड न्यूट्रिशनिस्ट. तब का मेरा गलती था कि तभी तो प्राइसेस वर लो. दिस इज बैक इन 2016 2017. आई यूज्ड टू थिंक कि अरे क्यों 1500 रुपये डालना है, क्यों 2000 रुपये देना है, क्यों 3000 रुपये देना है, क्यों 4000 रुपये देना है इसको पर मंथ. उससे अच्छा मैं इन पैसों का सप्लीमेंट्स लूँगा, कुछ और करूँगा, ये करूँगा, यूटिलाइज इट बेटर. बट क्या हुआ इन द प्रोसेस, my fitness trainer pushed me to have so many supplements, so many fat burners, ये वो, because उसके पीछे उसको कमीशन मिलता था and I was not able to realize that. And मेरा खर्चा बढ़ा
and my health suffered into this. तो what would you say कि एक nutritionist का add-on क्या रहता है लाइफ? He makes things simple for you. See, so I clearly remember my first call with Kamal. It was 25th of April 2023. Evening, रात को 9-9:30 बजे. And I told him कि सर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके जैसे दिखना है लाइफ में, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए. सबसे पहले तो पॉसिबल की है कि नहीं बताओ. 3 months का मैं आई एम रिन्यूइंग विथ यू, नॉट रिन्यूइंग, आई एम सब्सक्राइबिंग टू यू फॉर 3 months, एंड 3 महीने में हो सकता है कि नहीं ऐसे. सो ही अपफ्रंट टोल्ड मी कि आप अगर 3 महीने के लिए देख रहे हो तो भूल जाओ, मत करो, करो ही मत. इट इज़ लाइक वेस्ट ऑफ मनी फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, इट इज़ वेस्ट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव. ये सारी जर्नी को 9-10-11 मंथ्स लगेगा. आपका कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है. 3 months is process to begin with, but ये पूरा out and out इसको 9-10-11 months लगेगा. And one more thing he cleared with me was कि बहुत सारे coaches, fitness coaches, nutritionists नहीं बताते हैं कि it was about the anatomy of the muscle. कि he assured me कि आपके abs दिखेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, लेकिन वो सिमेट्रिक आएंगे, अनसिमेट्रिक आएंगे, ये इसका गारंटी मैं नहीं ले सकता. I was very insecure about my chest. इन 7-8 months के बाद भी आई वॉज नॉट फीलिंग कि मेरा चेस्ट एक प्रॉपर फॉर्म में है. सो ही ऑल्सो क्या बोलते हैं उसको कि आपका चेस्ट अच्छा दिखेगा, बट वो शेप कैसा लेगा, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव दिस इन देयर माइंड कि मुझे ऋतिक जैसा चेस्ट चाहिए, मुझे टाइगर जैसे एब्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन जेनेटिकली आप कैसे दिखते हो उसका अवेयरनेस कमल गिव मी दिस. And what made you go with Kamal? Why not any other coach? There were 2 things. I did not look onto his certification. I just looked कि खुद दिखता कैसा है, and I looked at the other part of it कि has he been able to transform his clients the way he is looking. I looked 2-3 clients were there उस journey में तब तक के लिए, and I feel that he is the guy. And do you think a coach should be fit? जो दूसरे लोग कोच कर रहा है, the nutritionist, he should be fit. Yeah, personally it has been happening with me also कि लोग सवाल पूछते हैं कि तू अगर फिट नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, और क्रेडिबिलिटी नहीं रहता. एंड नाउ आई एम हैविंग दिस अपर हैंड ऑन दिस एंटायर प्रोसेस कि पीपल लुक अप टू मी, माई क्लाइंट्स लुक अप टू मी, एंड बिकॉज आई हैव बीन इन टू द जर्नी ना, तो आई कैन कोच देम बेटर in terms of fitness. Nutritionist तो चाहिए ही, but this is what I am experiencing right now. तो खुद का fitness boss, you have to give 2 hours to yourself completely, you have to push yourself out of the comfort zone. तो ही आपका client वो चीज़ें करेगा आपको देख के, नहीं तो नहीं करते. So, first 10 days of your transformation journey with Kamal, पहले 10 दिन कैसे थे? Were it difficult or how was it? So I was a kind of person जो ज़्यादा बाहर नहीं खाता था. शायद 80-20 या 70-30 का रेशियो था. 70% was homemade food. The only problem was कि I was not quantifying it, या फिर quantification का importance नहीं पता था. I did not know the basics of it. It was very the thing which कि मैं इतने दिन तक sustain कर पाया ये चीज़ was because Kamal made it very simple for me. My food preference was non-vegetarian, and I told him कि I do not have problem eating the same foods again and again and again. But still, he kind of made it interesting. He gave me options, and which is why I did not have problems. Also, first 3 महीने he put me on to 2000 calories. Recomp पे डाला था, and 3 महीने तक उसने मेरा डाइट चेंज ही नहीं किया. Like he did not change a plan for me, and because it was working. Okay. Also one more thing I'd like to add on. Sundays को मैं एक day off लेता हूँ खुद के लिए. तभी I used to go out. And when I used to go out, I used to have food. Not so much so, but थोड़ा बहुत तो खा लेता था. Like barbecue हो गया या फिर starters. तो I informed him that. And he is the first nutritionist I came across जो बोल रहे कि आप खाओ. Until and unless you are getting results, आप खाओ. जब रिजल्ट मिलना बंद हो जाएगा तब देखेंगे क्या करना है, which I felt was a very good thing about him. तो quantifying, do you think ये आप follow कर सकते हो lifelong? Yes, it is like
The whole thing about PFC is कि you guys track everything and इसीलिए आप you guys believe in data. अब जब भी आपके रील्स देखता हूँ या फिर ये देखता हूँ, यू से रिसर्च सेज हमने ये स्टडी किया है, ये इतना डेटा है, इतने लोगों ने इतना किया, इतने लोगों ने उतना किया. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल लुक इनटू दैट एंड तो शो कर सकते हैं हम सामने वाले को कि ये देखो आपका फर्स्ट वीक में आप ऐसे दिखते थे, फिर फोर्थ वीक में आप ऐसे दिखते हो, एट्थ वीक में ऐसे दिखते हो, इंचेस में लॉस हुआ है, फिर वेट लॉस हुआ है. जस्ट राइट नाउ वट एवर पीपल आई एम मीटिंग जस्ट फोकस ऑन वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस. जो घंटा फर्क नहीं पड़ता मसल है नहीं है क्या है. सो क्वान्टिफाइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट मेक्स योर लाइफ सिंपलर. सो वो चीज़ हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि व्हेन यू सी प्रोग्रेस ना तुम्हें मज़ा आने लगता है. एग्जैक्टली. मैं कांच में अपने आप को देखता हूँ एंड 4 हफ्ते बाद देखता हूँ आई एम लुकिंग लीनर. आई गेट मोर मोटिवेटेड. या मैं अभी 10K स्टेप्स भी करूँगा, वर्कआउट भी करूँगा, डाइट पे भी चीट नहीं करूँगा, सब बेस्ट करूँगा. तो दैट गेट्स यू मोर रिजल्ट्स. तो आई थिंक वो इनिशियल पुश ज़रूरी होता है कोच के एंड से. एंड व्हेन यू सी प्रोग्रेस यू बिकम अनस्टॉपेबल उसके बाद. यस, वेरी ट्रू. एंड हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट PFC? So yeah, it was through what you can say one of my clients only कि वो follow कर रहे थे. पहले मैंने सोचा क्या ही होगा and then I met you guys like Chirag and everyone came held a workshop here about nutrition. But सब लोग बोलते सबका थेरी है, किसी कीटो वाले का अपना थेरी है, क्वांटिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट का अपना थेरी, सबका अपना थेरी है. नो वन नोज व्हाट विल वर्क अनलेस यू योरसेल्फ ट्राई दैट. जब मैं एज अ मेंबर एसोसिएट होने का था तो मेरे मन में भी काफ़ी डाउट्स थे कि अरे लोग क्या कहेंगे. एज अ कोच इफ़ आई एम नीडिंग अ हेल्प फ्रॉम समवन एल्स देन व्हाट कोच आई एम ऐसे. बट देन आई वॉज ओपन अबाउट इट कि बाबा अगर हेल्प चाहिए तो चाहिए. एंड आई पर्सनली फील एवरी वन नीड्स अ कोच टू पुश यू. इफ ही और शी इज़ अ कोच फिर भी क्योंकि मैं बाकी की मेरी जो एनर्जी है, मेरा जो टैलेंट है, आई वुड लाइक टू यूज़ दैट टू माई क्लाइंट्स. व्हेन इट कम्स टू मी आई वांट थिंग्स रेडीमेड. फिर मुझे वो एनर्जी पुट इन नहीं करना है कि यार कितने कैलोरीज, ये क्या वो क्या, कितना वर्कआउट, ये वॉल्यूम वो वॉल्यूम, ये हिट हो रहा है नहीं हो रहा है. अगर उसमें मेरी एनर्जी ड्रेन होने लगती है ना तो फिर वो एक्शंस में नहीं जाता है. आई लाइक टू हैव थिंग्स इन माई लाइक इन फ्रंट ऑफ माई आइज कि मुझे ये करना है, नाउ चलो लेट्स गेट इट डन, सॉर्टेड. तो ये ऐसा हुआ. और ड्यूरिंग दिस होल जर्नी कोई ऐसा रोड ब्लॉक, समथिंग वेयर यू गाइस वर स्टक एंड कमल हेल्प्ड यू गेट आउट ऑफ इट? या इट वाज अ रोड ब्लॉक. तो लेकिन एंड में अभी फिलहाल नवंबर दिसंबर में दैट वाज माय मिस्टेक ओनली. व्हाट हैपेंड इज वाज कि देयर वर वेडिंग्स लाइंड अप एंड आई आल्सो वेंट टू गोवा फॉर द शो. तो न्यूट्रिशन तो गया था, इट वेंट फॉर अ टॉस एंड देन आई स्टार्टेड एन्जॉइंग द फेज कि अरे जाओ क्या ही होता है, एक मील से क्या ही होता है, इससे क्या ही होता है, कॉफ़ी खा रहा हो, चलो सैंडविच भी खा लेता हो, मैं बर्न कर लूँगा. एंड देन यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि एक बार वो आपको इक्वेशन समझ में आए ना कि ये सैंडविच में 500 कैलोरीज है, आप 500 कैलोरीज चल के बर्न कर सकते हो, ये कर सकते हो, कुछ नहीं होगा रे, करते रहे. अनटिल एंड अनलेस यू वोंट सी दैट डिग्रेडेशन इन रिजल्ट्स ना, आप वो करते जाते हो एंड देन वन रिजल्ट हिट्स यू हार्ड. तो बहुत फैट भी गेन हो गया था बीच में. एंड देन इट वाज लाइक कि स्पेशली दिसंबर लास्ट वीक एंड देन आई फेल्ट नाउ इट इज़ अगेन टाइम टू गेट सीरियस, दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड हैव बीन. तो फिर मैंने वापस फ़ोन लेना, देन कमल कॉल्ड मी बैक एंड देन वही है कि ही हेल्प्स मी टू गेट बैक ऑन ट्रैक. और किस मोड पे मुड़ जाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये फेज अगर 3 वीक्स 4 वीक्स और चलता था तो थिंग्स वुड हैव गॉटन आउट ऑफ कंट्रोल फॉर मी. बट देन वो डिसिप्लिन जो है वो आपको कोच ही ला के देता है. देयर इज नथिंग मोर विच हेल्प्स. और व्हाट इज समथिंग दैट यू लाइक अबाउट कमल? कोचिंग स्टाइल, हिज वे ऑफ डूइंग थिंग्स. पर्सनली ही मेड मी अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ फूड और क्या होता है, कैसे होता है, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा. अननेसेसरी टॉर्चर नहीं किया उसने कि जब खा सकते हो तो खाओ. देयर वर टाइम्स दैट ही टोल्ड मी अप फ्रंट कि अभी हम लोग थोड़ा सा गेन करेंगे तो एक पीस नहीं बोला, 50 ग्राम्स या 100 ग्राम्स ऑफ मलाई बर्फ़ी इन द आफ्टरनून मील एंड 100 ग्राम्स ऑफ मलाई बर्फ़ी इन द इवनिंग मील आप खाओ. तो एंड वो हमने शायद 1 महीने तक किया
So he is the first nutritionist I came across जिसने ऐसे सब कुछ बोला and calculate किया. I personally keep sending him pictures, but then I feel कि वो बहुत सारी चीज़ें जो प्लान में है भी नहीं, जो PFC में लिस्टेड भी नहीं है, वो ऑफर करता है. Just not the nutrition, but he also schedules online posing classes. Then कुछ अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो he'll get on a call with me and try to explain क्या मैं ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, ये इसका क्वांटिफिकेशन ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए. He is not insecure about the stuff कि अगर कल को जाके मैं सीख जाऊँगा, मैं दूसरे लोगों को सिखाऊंगा, I won't recommend people to him. So but he is a very like well wisher जो नहीं है आजकल कोई नहीं है. हमें नहीं पता था कमल ये सब करता है. अरे What is your daily routine currently? Yeah, so currently जैसे कि you guys know I have a facility to run. I come in the facility around 7:30 ish and I have my clients lined up. 10:30 11 को I go back home. I have my meal. I take a power nap of 30 to 45 minutes. And in the afternoon, I go to a different setup near my home for workout because I need that personal space. ये 3-4 साल मेरा रूटीन इसलिए हैम्पर होता रहा बिकॉज वो खुद का डेडिकेटेड टाइम अलॉट नहीं हो रहा था एंड द डिसिप्लिन वॉज नॉट सेटिंग अप. सो आफ्टरनून 2 to 4:30 या आफ्टरनून 2 to 5 आई डू माई वर्कआउट. उसमें से 1.5-2 घंटा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पुश पुल लेग्स एंड 30-45 मिनट्स 50 मिनट्स कभी कभी 1 घंटा कार्डियो विच इज़ वॉक और साइकिल और वॉट एवर. Then I come back in the evening around 4:35ish and I have my complete my clients till 9:30-10. So as a lot of there is a myth कि 7 बजे के बाद अगर आप खाना खाओगे तो मोटे हो जाओगे या फिर अगर शाम को चावल खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे. Trust me, because of my work schedule, every day it is 10:30 for me to have my dinner, not before that. And dinner के बाद सोना ही पड़ता है immediately. So 10:30 I have dinner, 11 o'clock I sleep. Still I have gotten into great shape, so don't believe in like I do not recommend believing in such myths. और मेरे डिनर में हमेशा राइस ही होता है. So जब तक आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तब तक you will have a struggle in this kind of journey. And how did you come about clearing these things from your head, like these myths and जो चीज़ें आप गलत बिलीव करते हो? ये सब मुझे बहुत डाउट्स आते थे कि अगर मैं वीकेंड को पिज़्ज़ा खाऊंगा, पिज़्ज़ा हैज़ 3000 कैलोरीज और मैं 3 दिन हज़ार स्टेप्स चल के बर्न करूंगा तो इट इज़ सेम ओनली. तो व्हाई नॉट टू डू दैट समटाइम्स. तो आई फर्स्ट थिंग आस्क्ड माय कोच. तो उसने काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए. जो डाउट्स नहीं भी आते थे वो भी PFC का कंटेंट देखकर क्लियर हो गए. And then of course Chirag and you guys have your own tweets as well. तो yeah, there is no room for that. और कुछ रहता था तो मैं गूगल पे सर्च करता था, बट देन अगेन आई रियलाइज दैट इज़ अ नॉट ऑप्टिमम प्लेटफॉर्म टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम. तो रिसर्च पेपर्स, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग किसी के पास टाइम नहीं है इतना कि रिसर्च पेपर जाओ खुद पढ़ो, 10 पढ़ो, ये क्या कहता है वो क्या कहता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव रेडिली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हैंडी. ऑल्सो इंटरनेट पे जो चीज़ आप ऑलरेडी बिलीव करते हो ना, उसको सपोर्ट करने वाले एविडेंस आराम से मिल जाएंगे. एग्जैक्टली. कि इफ आई से लेमन हनी वाटर से वेट लॉस होता है, मुझे उसके लिए भी चीज़ें मिल जाएगी दैट सेज कि ऐसे होता है. मुझे कोई भी चेप देगा ये देख इससे ऐसा होता है, बट इफ आई फाइंड एविडेंस फॉर इट नॉट वर्किंग आई विल फाइंड इट. So that's not the best place to look for stuff. So now that you are in a great shape, I can see. अभी डे टू डे लाइफ में क्या चीज़ें आसान हो गई है? So the thing which is I have noticed recently is कि एक तो जहाँ पे मैं वर्कआउट करने जाता हूँ I don't talk to anyone. And there has this incident happened with me कि because of looking extra leaner or better in shape, one of the gyms refunded me my amount. I shared this experience with Kamal as well. But then क्या होता है ना कि वो मेंबर्स को इनसिक्योरिटी हो जाती है कि अपने कोचेस से कि ये मेरा कोच क्यों नहीं करा पा रहा है, या कि खुद करा रहा है, ये खुद कर रहा है. वो लोगों ने मुझे आंखों के सामने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा. एंड द फन पार्ट इज कि इन जिम जो वो लोग कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ. दे आर डूइंग ट्राइसेप एक्सटेंशंस, आई एम डूइंग ट्राइसेप एक्सटेंशंस. प्रॉब्ली दे आर डूइंग इट विद अ हेवियर वेट,
I am doing it with a lighter weight. Still, I am looking very aesthetic and lean. तो उनको पता नहीं चल रहा है. And then my thing of working out is like मैं headphones लगाता हूँ. I don't talk to anyone and I just work out on my own. But then people start giving you respect in the gym. Like खुद आके बात करेंगे, फिर ये करेंगे. फिर जिम के बाहर भी अगर आप जाओगे तो you notice people staring at you randomly SH. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लाइक ओवर द रूफ हो गए बहुत से. हाउ डू यू स्लीप और बाकी रिलेशनशिप विद फूड कैसा है अभी? Sleeping, I need to work on that because of my work routine. Now, sleeping is something which is not good. Lekin that is my personal thing and work stress. So I try to take 6-7 hours of sleep. कभी कभी 5-5.5 घंटे भी होता है. But again, that is not good. Relationship with food has improved a lot. Like I make sure कि मैं सिर्फ घर का खाना खाऊं. And my food palette is very simple. Like जो इंडियन लाइफस्टाइल है, पोड़ी भाजी वरण भात एंड सम प्रोटीन अलॉन्ग विद दैट. सो इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी कन्वीनियंट टू कुक एज वेल. सिर्फ क्वान्टिफाइड होता है तो वो सिर्फ मेजर करके खाना पड़ता है, उतना ही है. बट नाउ माई लाइक मॉम इज़ ऑल्सो, माई मॉम कुक्स फूड फॉर मी, so she's also got used to this pattern. And yeah, one more thing of my transformation is ki my parents got very motivated looking at my transformation, the efforts I have been putting in. So they also started working out, they also started following good nutrition. Now my dad is 57, my mom is 53. And तो उनका भी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ. दे अगर उनको लगता है कि बाहर जाके कुछ बिंज करे, जंक खाए, तो वो भी 2 बार सोचते हैं अभी जाने से पहले, खाने से पहले. तो या दे स्टार्टेड लाइक माई डैड वॉज नॉट वर्किंग आउट अंटिल नाउ, बट देन नाउ ही इज ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग आउट, फॉलोइंग अ गुड न्यूट्रिशन प्लान. All this credit goes to Kamal and PFC, of course. And what would you like to tell your 18-year-old self अगर वो सुन रहा हो तो? हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि न्यूट्रिशनिस्ट पे इन्वेस्ट कर. डोंट रन आफ्टर फैंसी सप्लीमेंट्स, डोंट रन आफ्टर fat loss pills, don't run after any kind of supplement which is not required just because its packaging is good, just because it claims that it will give good results. When अच्छे nutritionist पे invest करना is very important. That is not a expense. आप ये सारे सप्लीमेंट्स पे जो इन्वेस्ट करते हो, शायद आपको उसमें से 50% ही सप्लीमेंट्स लगे, लेकिन वो एक्सपेंस एक एड ऑन लगता है. बहुत लोगों को लगता है कि मैं इसके लिए क्यों इन्वेस्ट करूँ. लोगों का बेसिक एक्सपेक्टेशन है कि मैंने जिम ज्वाइन किया, मुझे भी ऐसे ही लगता था. माई 18-year-old सेल्फ वॉज अ 90 kg गाय, ओके, एंड ही यूज टू थिंक कि मैंने आज जाके जिम में पैसा भरा तो मेरा फैट लॉस होना चाहिए बस. कोचिंग का पता नहीं था, स्प्लिट का पता नहीं था, फूड का पता नहीं था, कुछ नहीं. So they expect कि paying 9,000, 10,000 in a gym for a year or so, that is what standard people charge. उसमें आपका सब कुछ हो जाना चाहिए. It does not happen that way. तो ये कि look in the science behind that. But I feel कि as I have gotten more mature, I have better understanding of things as well. तो वो बहुत important है. वही ना, लोग अंडर अप्रिशिएट करते हैं कंसिस्टेंसी को और ओवर अप्रिशिएट करते हैं सप्लीमेंट को. Yes. A person who has been working out 5 to 6 times a week gets better results than someone who is supplementing a lot of. So this incidents, I will share this with you. ये client मेरे साथ गालियाँ खाने वाला है मेरे से. तो there was this one case happened with me कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देख के पीपल आर लाइक यार मैं तो इसके पहले से ट्राई कर रहा हूँ, मेरा अभी तक नहीं हो रहा है, इसका इतने कम टाइम में कैसे हो गया. ही माइट बी डूइंग समथिंग विच ही इज़ नॉट टेलिंग. तो उसने, वो क्लाइंट ने मेरे से लिस्ट ले लिया कि तू क्या क्या सप्लीमेंट्स लेता है, तू ये लेता है, तू वे लेता है, तू क्रेटिन लेता है, तू वट एवर फिश ऑयल, वट एवर यू हैव, गिव मी द लिस्ट ऑफ इट. मैंने बोला ठीक है, मैंने भेज दिया. आई ट्राई टू कन्विंस सर यू नीड क्वान्टिफाइड न्यूट्रिशन, आपका प्रोटीन इंटेक नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, शायद ये नहीं रे, अरे मेरा उतना ही है रे, आई एम इनटू डेफिसिट रे, आई एम 1500 ओनली, आई एम हैविंग 1500 ओनली. मैंने बोला है क्या, मेजर करो. नहीं करना है लोगों को. सो पीपल अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ गुड फूड एंड ओवर एस्टिमेट पावर ऑफ सप्लीमेंट्स अ लॉट. तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द सॉल्यूशन टू दिस? कैसे लोगों को अवेयर करें इस चीज़ के बारे में?
फर्स्ट थिंग इज आई एम कन्विंस्ड कि लोगों को रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच ही चाहिए, कि जैसे पीएफसी फॉलो करता है कि दे शो रिजल्ट्स, कि वो ये बंदे को इतने दिन में इतना टाइम में इतना रिजल्ट मिला तो इसने क्या किया होगा. एंड व्हेन पीपल गेट टू नो कि आप भी करके देखो आपको भी रिजल्ट मिलेगा, एंड पीपल व्हेन गेट टू नो कि पोड़ी भाजी वरण भात इज द सॉल्यूशन फॉर इट, तो आई डोंट थिंक एनीवन विल रिफ्रेन. द प्रॉब्लम इज कि सरप्राइज, इट इज सो सरप्राइजिंग, इट इज सो सिंपल कि लोगों को बिलीव ही नहीं होता है कि अरे ये ऐसा. सी पर्सनली या शायद कल या परसों ही हमारे घर में डिस्कशन हो रहा था कि नाउ माई दादी stays in the ground floor and we stay in the first floor. We have a bungalow. Okay. And my दादी doesn't know कि मेरे घर में मेरी माँ मेरे लिए क्या बनाती है. Okay. So she assumes कि the way Amay is looking, he eats very different kind of fancy something food. Okay. And that day I came home ऐसे ही दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे, तो she was having her lunch. मैंने उसके प्लेट में देखा सिर्फ वो क्या खा रही थी. She was having 1 चपाती and 1 सब्जी. नॉर्मली कोई भी सब्जी अपनी होती है वो. And then I went upstairs and my mom told me this कि दादी was saying such and such thing. तो what did my mom do is कि my mom clicked a picture of my meal and showed it to her. तो मेरे आफ्टरनून लंच के पिक्चर में if you see, I'll share it with you guys. तो एक कटोरी दही है, फिर एक कटोरी दाल है, फिर एक चिकन इज 150 ग्राम्स ऑफ चिकन है, फिर एक छोटी सी चपाती है, एंड देन राइस है. सो आई एम हैविंग देन सम सैलड्स ऑल्सो. आई एम हैविंग एवरी सिंगल थिंग. बट हाँ, सो वो बैलेंस्ड मील जो बोलते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज़ सो सिंपल. आई एम हैविंग दिस डे इन डे आउट. रोज़ वही खाता हूँ. इट इज़ सो सेटिस्फाइंग ना that I enjoy the taste. Also, Kamal told me कि वो पहले से पता था शायद, लेकिन we do not use it. लोगों का रिस्पॉन्स रहता है कि अरे बोर हो गया सेम सेम खा के. सो मसाले जो है उसमें कोई भी कैलोरीज नहीं रहती है. यू कैन एक्सपेरिमेंट विद दैट. लेकिन लैक ऑफ एफर्ट जो बोलते हैं, लैक ऑफ क्रिएटिविटी होती है लोगों में कि अरे क्यों ये कर रहा हूँ तो सेम ही चीज़ करूँ. आफ्टर अ पॉइंट यू गेट बोर्ड एंड देन यू क्विट. तो वो नहीं, यू ट्राई एंड एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स. तो वही है कि अंडरस्टैंड द बेसिक्स. दैट इज आउट एंड आउट. व्हाट्स योर फेवरेट चीट मील? माय फेवरेट चीट मील इज पिज़्ज़ा, एंड लाइक आई रियली लव इट. तो मेरा दोस्त अभी ही वॉज गोइंग टू UK मिड जैन समथिंग, तो उसका फेयरवेल था. तो वी वेंट आउट एंड वी हैड पिज़्ज़ा एंड एवरीथिंग, एंड देन आई फेल्ट वेरी गिल्टी अबाउट इट. क्या रे खाया अभी तो मेरा रिजल्ट ये होगा वो होगा. अगेन सेम इक्वेशन कि सैटरडे नाइट को पिज़्ज़ा खाया 3000 कैलोरीज, संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन 1000 कैलोरीज चल के बर्न करूँगा, बाकी वर्कआउट करूँगा, बैलेंस्ड. सो आई कॉल्ड कमल, आई टोल्ड हिम कि ऐसे ऐसे हुआ है. ही इज़ ऑलवेज अप्रोच इज़ कि आई फील एवरी टाइम व्हेन आई फक अप ही विल स्कोल्ड मी, बट हीज अप्रोच इज़ कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं ना, अभी इसको अच्छी तरीके से प्लान करते हैं. So he always says कोई बात नहीं. And then I asked him this question. तो वो बोला कि ऐसे नहीं होता है. But then casually only, very casually, he said कि हंसते हंसते कि इतनी बड़ी गलती तो मैं कभी नहीं करता हूँ. Like having a large pizza around 2500-3000 कैलोरी, इतनी बड़ी मैं क्या करूँगा. ज़्यादा से ज़्यादा अगर चीट मील करने का मन किया तो फिर मैं राइस खा लूँगा, दाल खा लूँगा, ये खा लूँगा, वो. फिर मुझे खुद पे ही हंसने आने लगा. तो ऐसे. बट या आई समटाइम्स इट इज़ ओके. आई फील होना ही चाहिए वो. अगर रेस्ट्रिक्ट कर देंगे खुद को काफ़ी चीज़ें तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा. फिर वो फिटनेस भी किस काम. यस, एब्स बना लिए बट तुम खाना एंजॉय नहीं कर रहे. कभी कभी इट्स ओके. What are some tips that you would like to share with people who want to get fit? Okay, so get yourself a coach guys, क्योंकि it makes your job a lot easier. ट्रायल एंड एरर करते कोई पॉइंट नहीं है. बी इट फिटनेस, बी इट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बी इट न्यूट्रिशन. अगर कोच है तो एक डेडिकेटेड प्लान है. एंड सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि आपका गोल क्या है. एंड गोल यू हैव टू डिफाइन एंड यू हैव टू डिस्कस दैट विथ योर कोच. एंड देन डे इन डे आउट मैं तो ये सोच के चलता हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन है, आज का मेरा वर्कआउट चेक होना चाहिए, आज के मेरे सारे मील्स चेक होने चाहिए, आज के मेरे स्टेप्स चेक होने चाहिए. सो ट्रीट एवरी डे एज योर लास्ट डे. ऐसे नहीं कि अरे आज नहीं हुआ, अरे कोई बात नहीं, कल करते हैं, परसों करते हैं. आई यूज टू डू माई स्टेप्स 7 days a week थ्रू आउट द वीक.
बहुत सारे महीने इनिशियली पहले महीने तो थे बहुत लाइक 4-5 मंथ्स 7 days a week करता था. अभी बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स हैव टेकन ओवर तो संडे को नहीं होता है. तो आई ट्राई गोइंग फॉर अ स्विम, आई ट्राई गोइंग फॉर अ साइकिलिंग, ऐसे स्टेप्स कॉन्शियसली नहीं होता है. बट या एंड कंसिस्टेंसी इज द की. You have to hit the gym, you have to follow your plan, you have to do things, you have to sleep correctly, you have to have your water intake. And सबसे important बात I'll tell what people do is, जो मैं भी करता हूँ कभी कभी, I'll be honest with you, अगर कुछ गलती करेंगे तो नहीं बताएंगे and then blame it on the coach कि मैं तो सब कुछ ठीक से कर रहा हूँ, तेरे में कुछ तो फॉल्ट है, तूने मेरे को ये दिया है तो अभी तू देख क्या करने का है, मैं तो सब कुछ ठीक से कर रहा हूँ. पिक्चर शेयर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसे. बट थिंग्स विल बी वेरी इजी इफ वी प्लान दिस आउट. तो अगर आपको पता है कि वीकेंड में चीट होने वाला है तो जस्ट हैव अ वर्ड विथ योर कोच पहले ही कि मेरा ऐसा मील बाहर है, तो देन ही विल प्लान अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर यू अदर देन जस्ट हाइडिंग थिंग्स एंड जस्ट प्लेइंग द ब्लेम गेम ना. बहुत होता है, बहुत देखा है कि नहीं करेंगे, फिर भी कम्युनिकेट. But yeah, that is human psychology. This is how it works. Thanks for being on the show, man. Sure. Thank you. It was nice talking to you. Yeah.